Next, Honorable MLA Thangwang Wanghamjin. Honorable Speaker, sir, I rise here to extend my heartfelt gratitude to His Excellency, the Governor of Arunachal Pradesh, Lieutenant General K.T. Parnaik, PVSM, PYSM, YSM retired, who has been pleased to deliver his insightful and inspiring address in this August House on 6th of March 2025. Speaker, sir, His Excellency's words not only reflect a clear vision of Arunachal Pradesh, but also it reaffirms our collective commitment to progress towards inclusivity and sustainable development. Honorable Speaker, sir, His Excellency's address was not just a speech, but it was a call for action, a blueprint for Arunachal transformation into a state that is strong, that is self-reliant and forward-looking. Under the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Sri Pema Khandu ji and DCM Sir Sri Chawna Menji, Arunachal is moving beyond limitations, breaking barriers and forging a new path of prosperity. Sir, while extending my support, my gratitude and thankfulness to His Excellency for the speech that he has been pleased to deliver in this August House on 6th of March, I would like to appreciate, I would like to congratulate and thanks for some of the points that he has reflected here. Education is a panacea to all social evils. This government has launched a very promising flagship mission, Shikshit Arunachal, under the banner of transformation of education landscape in Arunachal Pradesh. This matter has already been discussed in response to the report laid by Honorable Minister of Education. However, it is necessary that I must extend my gratitude, my thanks, and I must extend congratulations to the Honorable Chief Minister, his Council Minister, for his insightful thoughts, for this very meaningful step and initiative that we are taking to improve the educational landscape in the state of Arunachal Pradesh. Education is a very important subject. We must invest in education. We must invest in health. Under this process schemes, the state has also launched Arunachal Pradesh scheme for scholarship excellency, providing the financial assistance to the youth gaining admission in the undergraduate, the graduate and the doctoral courses in the top 150 universities of the worldwide. This is also a very appreciable and highly appreciable
and a welcoming state. Speaker sir, as we say, health, good health is the true wealth. Good health is the true wealth, not just something that one can buy, but it can be extremely valuable as saving account. This government has increased the seat of MBBS in TRIMS, which is very encouraging, motivating, and the government's initiative for the establishment of Cancer Hospital, Cancer Institute in Midpur is also highly appreciative. And regarding the women, His Excellency has highlighted that 110,000 women will be given a training, and they will be clustered into 13,000 self-help groups, which will result in the securing at least 75 crore as a bank credit. This is encouraging empowerment of the woman is very important. In this regard, I would like to say that we should not forget the widows also. Those widows, they are vulnerable. उनका आगे पीछे कोई नहीं है. The widows of Arunachal, कोई तो जबान में widows हो जाता है, जिसका कोई नहीं है. दिन में रोता है शर्म से, रात में रोता है डर से. उनका दुख में तकलीफ में शेयर करने वाला कोई नहीं है. उसका दुख को समझने वाला ओनली भगवान है, और खुद समझता है, बस कोई नहीं समझता है. So these widows, the welfare initiative for the widows, इनको भी हम सोचना चाहिए. As a welfare government, widows and the weaker section को देखना बहुत जरूरी है. विडोज को क्लस्टर बना के, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के इनको माइक्रो फाइनेंस देना चाहिए, इनको लाइवलीहुड स्कीम देना चाहिए. साल में 10,000 5,000 जो इंसेंटिव देता है, दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन हम इनको जीने का चांस देना चाहिए, प्रोडक्टिव बनाना चाहिए, इकोनॉमिकली उनका परिवार को भी वायबल बनाना चाहिए. As a welfare government, ये हमारा ड्यूटी है. So I will request the Honorable Chief Minister and the Finance Minister and the Council Minister कि ये विडो का जो दुख तकलीफ को भी थोड़ा हम सोचने से ठीक है. This is my request to the government. और सर कल क्वेश्चन में भी आया था, क्वेश्चन आवर में भी, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम होना चाहिए म्यांमार बॉर्डर में. म्यांमार बॉर्डर इज इक्वली इम्पोर्टेंट. चाइना ऑलरेडी घुस चुका है म्यांमार में, भूटान में, नेपाल में, श्रीलंका में. इकोनॉमिक वेंचर का बहाना में ऑलरेडी घुस चुका है श्रीलंका में. तो हमारे लिए एनी टाइम ये खतरा हो सकता है. चाइना तो पूरे स्टेट को नोटिस को डिमांड कर रहा है. चाइना को जमीन टुकड़ा नहीं चाहिए, और चाइना अपना देश से कभी लड़ेगा भी नहीं, अपना घर से किसी को वार भी नहीं करेगा. और भूटान में घुस के करेगा, नेपाल में घुस के करेगा, श्रीलंका में घुस के करेगा, बांग्लादेश में घुस के वहां से गोली चला. तो दिस इज म्यांमार बॉर्डर इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. While appreciating the initiative of the central government for VVP initiative in China border, I would like to request the Honorable Chief Minister कि ये चीज को MHA तक बात पहुंचाइए और
वहां का जो म्यांमार बॉर्डर का जो गांव है उसको भी थोड़ा चमकाने के लिए इनिशिएटिव लेने से ठीक है, मेरा ये रिक्वेस्ट है। और सर अभी ये फॉर्मर जो स्पीकर लोग ने जैसे बोला, लाइक आई वुड लाइक टू टेक पार्ट, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट द कंसर्न regarding the implementation of Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978. Sir, the intent of this act is to prevent the forceful conversion. The intent of this act is to prevent the conversion forcefully by alluring inducements. This is good, but the practical implication rise pressing issues that requires thoughtful consideration. Sir, I appreciate the Honorable Chief Minister and the Honorable Home Minister and the Law Minister who have clarified the public opinion through their recent press statement. आप लोगों ने प्रेस स्टेटमेंट से इतना सुंदर से पब्लिक का ओपिनियन बनाया। बीएससी मीटिंग में स्पोक्समैन, पार्टी स्पोक्समैन सोना साहब से भी बात किया था, ये चीज को पब्लिक को बता देना है, क्लैरिफाई करना है। तो सोना साहब ने भी अपना प्रेस स्टेटमेंट सुंदर से पब्लिक को समझाया। नहीं तो 6 तारीख को यहां में बहुत कुछ होने वाला था, पीआरसी इशू जैसे भी होने वाला था, अयोध्या इशू जैसे भी होने वाला था। तो इसमें आप लोगों ने जो सिचुएशन को हैंडल किया, पब्लिक को माइंड को पकड़ सका, पब्लिक को अच्छा से कंट्रोल कर सका, पीस प्रिवेल लाया किया। आई अप्रिशिएट योर लीडरशिप। ऐसे ही आप लोग अरुणाचल को बनाए रखेगा, पीस हमेशा बनाए रखेगा। दिस इज माई होप, माई एक्सपेक्टेशन। सर, ये जो कानून है 1978 में बनाया, इसमें हम सभी को मालूम है इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। जब तक कि इंडिया का प्रेम्बल में सेकुलर वर्ड है तब तो एवरीबडी इज फ्री। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया गया। फंडामेंटल राइट इज नॉट द कलेक्टिव राइट ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल, it is not the collective right of the family, it is not the collective right of the clan or any group of associations. ये individual citizen को दिया हुआ fundamental right है, right to profess। बाप और बेटा भी अलग अलग धर्म ले सकता है, इसमें कोई मने ऑब्जेक्शन नहीं है, as per the fundamental right guaranteed by the Indian Constitution। तो इसमें ये जो इतना साल कुछ नहीं बना के, कानून नहीं बना के, असेंबली में केवल पास करके ऐसा था, उसी समय का जो कैबिनेट ने कुछ नहीं किया, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कैबिनेट ने कुछ नहीं किया, तो 46 इयर्स हो गया है। अभी इतना कन्वर्शन, अगर फोर्सफुल कन्वर्शन हुआ होने से भी उसी समय में हुआ था होगा। अभी तो अरुणाचल इज पीस, मणिपुर शांति है, इसका इतना कोई जरूरी नहीं था। लेकिन जैसे सुना गया कि हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है, हाई कोर्ट से रूल्स बनाने के लिए बोला है, अगर ऐसे है तो ठीक है, हाई कोर्ट से भी अभी हम लोग टाइम ले सकता है, अनदर 6 मंथ के लिए और अप्लाई कीजिए। इसको बढ़िया से हम लोग कंसेंसस लेकर के ऑल स्टेक होल्डर को, ऑल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करा के डिस्कस करके इसको फ्लॉलेस कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें किसी को मिसयूज होने का पोटेंशियल फॉर मिसयूज है, मिसयूज होने का बहुत चांस है। जैसे कि आपको का अरुणाचल प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आपको का बनाया था 2000 साल में, इसको 2003 में फिर रिपील करा दिया था, क्योंकि आपको का वो जो मोको का, आपको का अंटाडा, इसको बहुत खराब से कोई भी मिसयूज कर सकता था, माने मिसयूज करने का पोटेंशियल ज्यादा है इसमें। ये कानून को भी वो जो पुलिस ऑफिसर ने इसको अपने हाथ में 100 मोटो केस ले लेगा,
बिना कोई कंप्लेन, बिना कोई एफआईआर, सो मोटो केस लेकर के इसको वो मिस यूज कर सकता है। इफ ही हैज एनी ग्रज विद दैट पर्सन। एंड देन जो एक्ट में प्रिंसिपल एक्ट का अनुसार होना चाहिए, जो कानून भी बनाता है, इफ जैसे रूल्स फ्रेम होता है तो दैट मस्ट बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट। प्रिंसिपल एक्ट में यहाँ पे लिखा है आफ्टर द कन्वर्शन, आफ्टर द सेरेमनी, लेकिन जो ड्राफ्ट रूल्स में लिखा है बिफोर, प्रायर टू। तो आफ्टर होने से तो ये परमिशन का तौर, ये इंफॉर्मेशन के तौर पे होगा, ये हम कन्वर्ट हो गया है, हमारा ऐसे हो गया करके ये इंफॉर्मेशन होगा। लेकिन प्रायर टू 15 डेज अगर है तो इट इज ए परमिशन, और रिलीजन तो परमिशन लेके कोई नहीं ले सकता है, किसी से परमिशन लेके रिलीजन नहीं हो सकता है ये। तो ये जो चीज है, अभी जो समय पे हम लोग ने इसको पकड़ लिया, चर्चा में आया, अच्छा हुआ है, नहीं तो ये अगर बनने से तो ये बहुत डेंजर था ये चीज। इसीलिए ये सब चीज को ध्यान में रखिए, सोशल हार्मनी को ये भंग कर देगा। और इसमें इसीलिए आई विल लाइक टू सबमिट माय पॉइंट की a comprehensive review of the act provision must be done involving the representative from all affected communities to ensure the inclusivity in our legislative process and a clear safeguard against the misuse to protect individual engaged in a legitimate religious practice from the potential harassment. An open forum for dialogue where all concerns can be addressed transparently, fostering trust and understanding before finalizing the implementation of the rules. Sir, ये है, and we may seek the time, six month time from Honorable High Court to allow for proper consultation of all communities, ensuring that their voice and concerns are not left unheard. Sir, ऐसे है, laws, unlike the physical structures, they are meant to endure through generations. While जो बिल्डिंग है, सड़क है, ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए बनाया जाता है, लेकिन द एक्ट एंड द लॉज एंड द ऑर्डिनेंस इट इज टाइमलेस। ये बहुत प्रोस्पेरिटी को माइंड में, ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए इसको। ये हजारों साल के लिए बनाते हैं जो कानून है। सड़क तो 15-20 साल के लिए बनता है, बिल्डिंग तो 10-15 साल के लिए बनता है, लेकिन कानून तो हजारों लाखों साल के लिए बनता है। इसलिए तो हेस्टिली नहीं बनाने से अच्छा होगा, हेस्टिली डिसीजन नहीं लेके इसको वेरी माइंडफुली, इन वेरी मैच्योर वे, इन वेरी एडमिकेबल वे में सबको, इंसान को सबको एक साथ में लेते हुए इसको ऐसे बनाने से अच्छा है। APJ अब्दुल कलाम ने बोला था कि फॉर अ ग्रेट मैन रिलीजन इज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, small people make religion a fighting tools. ग्रेट मैन जो है ना, रिलीजन को अपना वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स के लिए रखता है, लेकिन छोटा आदमी लोग इसको हथियार, लड़ने का हथियार बना के रखता है। इसलिए सिंस वी आर नॉट ए छोटा आदमी, हम लोग वी आर अ ग्रेट मैन। इसलिए ग्रेट थॉट रखना है, विद नोवेल्टी ऑफ थॉट, विद नोवेल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी के साथ हम इसको बनाएगा बोल के मैं उम्मीद करता हूँ। हमारा CM साहब ने अपना मीडिया में इतना जो क्लियर करके पब्लिक को समझा के इतना शांति ला दिया, हमको बहुत अच्छा लगा। नहीं तो क्या क्या होना, अलग अलग किस्म इंफॉर्मेशन आ रहा था। इसलिए BAC मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया, देखिए इसको ये PRC इशू जैसे नहीं होना चाहिए। हम भी यहाँ हल्ला कर देगा, उधर भी बाहर में भी हल्ला होगा, तो किसने किसको कंट्रोल करेगा। इसलिए इसको ठीक होना है बोल के हम लोग डिस्कस किया था अंडर द ऑनरेबल स्पीकर सर का अंडर में। तो ये CM साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने और सोना साहब ने एंड या हमारा लॉ मिनिस्टर ने, आप चारों ने सिचुएशन को इतना अच्छा से कंट्रोल किया। तो उम्मीद रखता हूँ कि और भी अच्छा बनाए रखेगा अरुणाचल को। हमको अरुणाचल को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। दिस इज माई हम्बल सबमिशन। सो ऑनरेबल स्पीकर सर, His Excellency's address जो है, it was just not about the achievement only, ये जो है it was about the vision
एक्सीलेंसीज का जो स्पीच था, उसका एड्रेस था, ये अचीवमेंट केवल नहीं हो के इसका उनका जो सपना, सरकार का जो सपना, सरकार का जो विजन, 100 इयर्स के लिए इमेजिनेशन को ये जो गवर्नर एड्रेस के तौर पे जो दिखाया है, दिस इज अ विजन ऑफ एन अरुणाचल प्रदेश दैट इज कनेक्टेड, दैट इज सेल्फ रिलायंस, दैट इज एजुकेटेड, हेल्दी एंड इंक्लूसिव. So as a representative of the people, it is our responsibilities to translate the vision of this government, the vision of His Excellency into a reality. Let us commit to building an Arunachal that is progressive, that is empowered and full of opportunity. Let us work together to ensure that every road lead to progress, every child has access to education, and every youth finds opportunity, and every citizen live with dignity. With this word, I once again extend my heartfelt gratitude to His Excellency and the Governor of Arunachal Pradesh for his visionary leadership. I also extend my heartfelt thanks to the Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, and the Council Minister for these wonderful speeches drafted to be delivered in this August House on 6th of March 2025. Together, let us build an Arunachal that is unstoppable. So, thank you very much. Jai Hind and Jai Arunachal. Thank you.